रखी है वो अच्छा, डिस्टरबेंस होता है ना शायद इस वजह ठीक है से। ठीक है ठीक है, ओके सर। नहीं वो जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी कहा था ना। कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल बंद कर सर। आपकी क्लास ना लाइव हो गई है, आप स्टार्ट कर दीजिए। जी सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। In the last class, we discussed about the three sector economy. When government introduced taxes, what is the effect of tax? After introduction of tax, there will be a disposable income. The disposable income, the income after paying the tax. Disposable income, the income after paying the tax. ठीक है, and today we discuss, so we discussed about two sector economy where we have only two sector, that means household sector and firm sector, or we can say investment sector. Then we discussed about the three sector economy. Three sector economy, the household, the firm and the government. ठीक है, and while we studying. हेलो, जी सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर आप ना स्टूडेंट्स को कन्वे कर दीजिए कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है लास्ट में तो वो अपना अनम्यूट करके। हाँ हेलो। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके अच्छा, ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन आपसे कर सकते। आप ये करें अभी स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट के बोला था 20 मिनट्स में आप यू कैन टेक द क्वेरी ऑफ स्टूडेंट्स। जी सर। ओके सर, ओके ओके। in the so we discussed in the last class three sector economy, the introduction of taxes. If the student has the queries they can ask when 20 minutes are left in the class, and after making them unmute, so they can ask the question if they have any problem only one by one, so that there will be no disturbance in the class. Okay students, so in the last class we discuss about the introduction of tax, when government introduced the tax in three sector economy. So after introduction of the tax there is a disposable income in the economy. So disposable income, the income after paying the tax. So that was discussed in the previous class, and now we discuss about the four sector economy, or we can say an open economy. Two sector and three sector economy is the closed economy, and four sector economy is the open economy, because this is the economy which has the relation with rest of the world. That means it has the economical relation with other countries also. And nowadays all the economies in the world is in open economy. No one economy is a closed economy, because every economy has the relation with other countries. Okay, so let us discuss about the four sector economy. And first we discuss about the net export function, which is very important topic for your exam point of view also, and it is very important. Okay, so first write a short note on net export function. Net export function, import. So import of a country, however, depends upon the spending decision of domestic resident of a country. कि जो इंपोर्ट होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, डोमेस्टिक रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के, बिकॉज डोमेस्टिक रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, एज वी नो दैट इंपोर्ट व्हेन वी purchase goods from other country, so it is known as import. And export means when we sold goods and services to other countries is known as export. ठीक है, तो import of a country however depend upon the spending decision of domestic resident, कि जो import होते हैं, जो हमारी कंट्री के जो domestic resident है उनके decisions पे depend करते हैं. Resident of a country often make demand for foreign made goods and services. Generally हम देखते हैं कि जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है
they demand for foreign made goods and services. As the GDP rises, that means income rises in the economy, the resident of a country can spend more on the imported goods. जो resident of a country है वो जो है डिमांड करते हैं ज्यादा imported goods पे खर्चा करते हैं. Exports are GDP rises with increase in export. और एक्सपोर्ट क्या होते हैं? एक्सपोर्ट डिसीजन जो बेसिकली डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर फॉरेन कंट्रीज पीपल. और जैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है कंट्री का जीडीपी भी इंक्रीज हो जाता है. और एक चीज है कि एक्सपोर्ट आर द इंजेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी के एज एक्सपोर्ट इन द इकोनॉमी राइजेस तो economy also grows. That means there is an increase in GDP. There is an increase in GDP. ठीक है. Injection in an economy. That means GDP increases with increase in export. Whereas imports are headwinds for the increase in imports. और अगर net export between exports and imports, desired net is negatively related to GDP. As GDP increases, net export desired net export are negatively relation to GDP because positive relation between desired import and GDP. क्या कह रहे हैं कि there is a negative relationship between net export and GDP. कि जैसे जैसे GDP बढ़ता है तो net export जो है कम होता जाता है. उसका रीजन होता है because of the positive relationship between desired imports and GDP. कि there is a positive relationship between desired imports and GDP. The negative relationship between net export and GDP is called net export function. Or the negative relationship between net exports and GDP is called net export function. Take equilibrium of national income after the introduction of foreign trade sector can be explained. This is not a equilibrium of this is the equilibrium four sector economy, but क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हमें दूसरा करना है. ये अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, वो अलग से आएगा. पूरा एक्सप्लेनेशन फोर सेक्टर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम. ये हम जो इक्विलिब्रियम बता रहे हैं कि हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है उससे कैसे इक्विलिब्रियम आता है. देखो इन द इकोनॉमी इट इज इन करोर्स. वी कैन राइट नेशनल इनकम और जीडीपी 0, 100, 200, 300, 400, 500. एक्सपोर्ट कांस्टेंट which is 50 crores because export not dependent on the domestic decisions of the country. It is depend on the foreign. Import M 0.25 of Y, यानी कि जितना GDP है उसका 0.25 is G. Import. Net export is export minus import. तो 50 minus 0 50, 50 minus 25 25, 50 minus 50 0, 50 minus 75 minus. अब देखो जैसे जैसे GDP increases, net export function down becomes 0 and now becomes negative. 50 minus 75 minus 25, 50 minus 100 minus 50 and 50 minus 125 minus 70. Okay, as GDP increases, net export falls. Table is based on the assumption that the economy has constant exports of rupees 50 crores and imports are 25% of GDP. कि टेबल जो हमारी बेस्ड है upon the assumption that the economy has constant exports of rupees 50 crores. कि इकोनॉमी में जो है एक्सपोर्ट्स हैं वो 50 करोड़ कांस्टेंट है and imports are 25% of GDP. Export from the autonomous components. Export जो है हमारा autonomous components है, whereas the import from the induced components of desired net export function. कि export जो है autonomous है, independent है, जबकि import जो है वो induced factor है जो depend करता है किस पे? GDP पर. ठीक है.
तो कांस्टेंट ऑफ द डिजायर्ड नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, इंपोर्ट्स राइज व्हेन जीडीपी राइज, के इंपोर्ट बढ़ जाता है जब जीडीपी इंक्रीज होता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अटेन्ड एट 200 करोड़, के इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है अटेन्ड है वो 200 करोड़ पे है, वेयर एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इंपोर्ट, जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। एट एक्स एक्सिस वी मेजर्ड रियल इनकम और नेशनल इनकम और जीडीपी, हेयर नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट आर पॉजिटिवली, द कर्व इज upward sloping or positively slowed from left to right, because as GDP increases import also increases, and import is denoted by m is equal to 0.255. that means जितना हमारा GDP होगा इकोनॉमी में उसका 0.25 is import and export is constant which is 50 करोड़, और एक्सपोर्ट जो है हमारा वो कांस्टेंट है 50 करोड़ रुपए में। तो पॉइंट ये हमारा ये ई रह गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। बिफोर पॉइंट ई द एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, आफ्टर पॉइंट ई एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट या इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। नाउ अब ये हमारा जो डिफरेंस है ये जैसे ये जा रहा है तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन स्टार्ट होता है हियर, कुछ 50 करोड़ है, सेम गैप करेंगे और ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, वेयर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। तो सेम ये हमारा 200 करोड़ पे इट इज 0 एंड आफ्टर द 200 करोड़ ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट फंक्शन इज नेगेटिव एंड बिफोर इट पॉजिटिव, because before 200 crore of GDP level export greater than import, तो net export function is positive, after 200 crores वो import greater than export, तो next export function is negative. Clear? अब in the figure export are constant as rupees 50 crores, export जो है हमारे वो कांस्टेंट है 50 करोड़ है, whereas imports rises with increasing GDP, और import जो है बढ़ जाता है जैसे जैसे GDP बढ़ता है। Therefore the net export which are shown in figure second decrease with a rising GDP, इसीलिए जो net export है वो कम होता जाता है as GDP increases. The equilibrium level of national income is 200 crores where exports equal to import, जहाँ पे export and import equal है। When the level of national income is less than 200 crore, export will exceed import. The new export ये net export है students, so therefore the net export function will be positive. Inversely, if level of GDP or national income is more than 200 crores, import will exceed exports, therefore net export function will be negative. ठीक है, तो this is the net export function. तो net export function shows the negative relationship between the GDP and net export. There is a negative relation or there is an inverse relationship between GDP and net export, and which is known as net export function. Let us discuss in Hindi. ये रहा 4 क्षेत्र में शुद्ध निर्यात फलन, जो शुद्ध निर्यात फलन है इट कम्स इन द 4 सेक्टर इकोनॉमी। शुद्ध निर्यात फलन एवं राष्ट्रीय आय का निर्धारण, इक्विलिब्रियम ऑफ डिटरमिन, ये कह सकते हैं कि कैसे हमारा नेशनल जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है शुद्ध निर्यात फलन के द्वारा और का राष्ट्रीय आय के द्वारा। तो एक देश कितनी मात्रा में निर्यात कर सकेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशी परिवार एवं फर्मों के व्यय संबंधी निर्णय क्या है, क्योंकि विदेशी क्रेता ही घरेलू सामान की मांग करते हैं। क्योंकि देखो जो हमारा एक्सपोर्ट है इसको निर्यात बोलते हैं हम, वो डिपेंड करता है हमारा कि विदेशी लोग हमारी वस्तुओं की कितनी मांग करते हैं। लेकिन एक देश के आयात घरेलू निवासियों के व्यय संबंधी निर्णयों से प्रभावित होते हैं। आयात मीन्स इंपोर्ट, जब हम दूसरे देशों से सामान मंगा रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे देश के जो लोग हैं, घरेलू जो व्यक्ति हैं, मतलब जो हमारे देश के घरेलू निवासी हैं, डोमेस्टिक रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, कि उनका क्या निर्णय है विदेशी वस्तुओं के लिए।
घरेलू निवासी अक्सर विदेशी निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। जैसे ही जीडीपी बढ़ती है, वहां के निवासी आयातित वस्तुओं की मांग बढ़ा देते हैं। क्रम में उपभोग व्यय कर सकते हैं। निर्यात एक अर्थव्यवस्था में अंतःक्षेपण है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन मीन्स वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं कि जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी दर बढ़ जाएगी। अर्थात निर्यात बढ़ने पर राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है, जबकि आयात एक अर्थव्यवस्था में रिसाव, लीकेजिस का काम करता है। अर्थात आयात बढ़ने पर राष्ट्रीय आय कम हो जाती है, कि जैसे जैसे आयात बढ़ता है तो हमारी राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। उसका रीजन देखो ये होता है स्टूडेंट्स, कि बेसिकली जैसे से हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश की सारी मनी बाहर दूसरे देशों में चली जाती है। तो आपने पढ़ा था पीछे, एक पॉइंट पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, तो निवेश गुणक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। तो जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था में हम निवेश करते हैं तो फिर क्या होता है, जो हम खर्चा करते हैं उससे आय बढ़ती है, फिर उससे नया एक्सपेंडिचर होता है। अगर सोचो सरकार ने निवेश करा है और वो निवेश में जो लोगों ने पैसा, इनकम बढ़ी, आपने पढ़ा था, वो इनकम ज्यादातर इंपोर्ट गुड्स पे खर्च कर दिया, इंपोर्ट्स पे, आयात पे खर्च कर दिए, तो वो सारा पैसा का जो प्रभाव है वो बाहर चला जाएगा, तो हमारे देश में प्रभाव नहीं होगा। तो जैसे फिर क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। तो अर्थात जो हमारा इंपोर्ट होता है वो, अगर हमारा इंपोर्ट अगर ज्यादा है आयात, तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था डाउनफॉल होती जाती है। इसीलिए हमें चाहिए अर्थव्यवस्था में कि हम इंपोर्ट कम से कम करें, ठीक है। निर्यात एवं आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं, कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो देखो आपको पता ही है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नोन एज शुद्ध नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। इच्छित निर्यात का राष्ट्रीय आय से विपरीत संबंध होता है। जो डिजायर्ड एक्सपोर्ट है शुद्ध निर्यात का, वो राष्ट्रीय आय से विपरीत संबंध है, कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में, शुद्ध निर्यात कम हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय और इच्छित आयातों में धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। शुद्ध निर्यात एवं राष्ट्रीय आय के बीच ऋणात्मक संबंध को शुद्ध निर्यात फलन कहते हैं। देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेट एक्सपोर्ट, एंड दिस इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, शुद्ध निर्यात फलन। शुद्ध निर्यातों और राष्ट्रीय आय के बीच ऋणात्मक संबंध को शुद्ध निर्यात फलन कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी टेबल है, शुद्ध निर्यात फलन, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। राष्ट्रीय आय, जीडीपी 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। निर्यात जो है इसमें कांस्टेंट होगा, 50 करोड़ है। आयात हमारा आपको बताया था 0.25 वाई या जीडीपी है, जितना भी जीडीपी होगा उसका 0.25 इंपोर्ट होगा। शुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात, ठीक है। अब जैसे देखो हमारा जो आयात है वो पहले 0 इनकम है, तो 0 इनकम, 100 है तो 100 का 0.25 25 करोड़, ठीक है। एंड देन 200 तो 50, 300 75, 400 0.5 0.25 सॉरी 100 और 500 का 125। तो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, 50 minus 0 50, 50 minus 25 25, 50 minus 50 0, 50 minus 75 now it become negative minus 25, 50 minus 100 minus 50, 50 minus 125 minus 70। तो ये हमारा आ गया नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात, ठीक है। तो सारणी इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में निर्यात की मात्रा 50 करोड़ रुपए तक स्थिर है, जबकि आयात जीडीपी का 0.25% या 0.25। निर्यात इच्छित शुद्ध निर्यात आयात निर्यात फलन में स्वचालित संगठन है। निर्यात जो है इच्छित शुद्ध निर्यात फलन में स्वचालित संगठन है, जबकि आयात प्रेरित संगठन है। यानी कि जो निर्यात है वो कांस्टेंट है, वो मतलब ऑटोनोमस है, स्वचालित है, और जो आयात है वो इंड्यूस है, प्रेरित है। किससे? अगर हम देखें तो जीडीपी से। जीडीपी में वृद्धि होने पर आयात भी बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का साम्य स्तर 200 करोड़ रुपए है, क्योंकि यहाँ आयात और निर्यात दोनों बराबर हैं, ठीक है। और शुद्ध निर्यात फलन जो है हमारा वो 0 होता है। तो ये हमारा डायग्राम है।
इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम, तो स्टूडेंट्स को दिखेगा नहीं, ठीक है, तो जूम कर लेते हैं। देखो जैसे ये हमारा है शुद्ध निर्यात फलन, पहले इसको बताते हैं डायग्राम 1 को, फिर इसको करेंगे 2 को। तो एक्स एक्सिस पे हमने मेजर किया है वास्तविक राष्ट्रीय रियल जीडीपी, और वाई एक्सिस पे निर्यात व आयात, इसको शुद्ध निर्यात भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे अब देखो ये हमारा है शुद्ध निर्यात, ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये लाइन जो डार्क है 50 पे, एक्स 50 करोड़ है, तो ये एक्स अक्ष के समानांतर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बिकॉज एक्सपोर्ट रिमेन कांस्टेंट। और इंपोर्ट जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, धनात्मक ढाल वाला है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर की ओर बढ़ता है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बिंदु, यहाँ पे ई लिखना चाहिए, हमें ई पर काटते हैं, और बिंदु ई संतुलन बिंदु है जहां पर शुद्ध निर्यात और आयात बराबर हैं, और आय का साम्य स्तर 200 करोड़ है। अब इसको हमने फिर डायग्राम सेकंड पे ले गए, तो ये हमारा 50 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर शून्य होगा, शून्य वहां पर होगा जहां पर निर्यात और आयात बराबर हैं, वहां पर ये हमारा शून्य हो गया, और 200 करोड़ के बाद हमारा जो शुद्ध निर्यात फलन है वो ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि इस 200 करोड़ के बाद आयात निर्यात से अधिक हो जाते हैं, तो जो शुद्ध निर्यात है वो ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए शुद्ध निर्यात फलन ऋणात्मक है। और 200 करोड़ आय के स्तर से पहले ये धनात्मक है, क्योंकि 200 करोड़ आय के स्तर से पहले निर्यात आयात से अधिक है, और हमारा जो है शुद्ध निर्यात फलन जो है वो धनात्मक है। रेखा चित्र 1 में निर्यात 50 करोड़ रुपए के स्तर पर स्थिर है, जबकि आयात राष्ट्रीय जीडीपी के बढ़ने पर बढ़ते हैं, इसलिए शुद्ध निर्यात जिन्हें चित्र 2 में दर्शाया गया है जीडीपी में वृद्धि के साथ घटते हैं। राष्ट्रीय आय का साम्य स्तर 200 करोड़ रुपए है, जहां निर्यात व आयात एक समान है। यदि राष्ट्रीय आय का स्तर 200 करोड़ से कम है तो आयात की तुलना में निर्यात अधिक होंगे, अतः शुद्ध निर्यात फलन धनात्मक होगा। इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय आय का स्तर 200 करोड़ रुपए से अधिक है तो आयात निर्यात से अधिक होंगे, अतः शुद्ध निर्यात फलन ऋणात्मक होगा। तो शुद्ध निर्यात फलन शुद्ध निर्यात और राष्ट्रीय आय या जीडीपी के धनात्मक संबंध को दर्शाता है, और शुद्ध निर्यात और जीडीपी में ऋणात्मक संबंध है, विपरीत संबंध है कि जैसे जैसे जीडीपी आय का स्तर बढ़ेगा शुद्ध निर्यात कम होता जाएगा। तो ये हमारा है शुद्ध निर्यात फलन, ठीक है। अब इसमें परिवर्तन आते हैं, इसमें खिसकाव है, चलन है। तो शुद्ध निर्यात फलन का खिसकाव और चलन, शुद्ध निर्यात फलन शुद्ध निर्यात एवं राष्ट्रीय आय के मतलब शुद्ध निर्यात में कब परिवर्तन आता है अर्थव्यवस्था में, किन कारणों से, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। शुद्ध निर्यात फलन शुद्ध निर्यात एवं राष्ट्रीय आय के बीच ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि घरेलू जीडीपी के अलावा अन्य सभी कारक जो शुद्ध निर्यात को प्रभावित करते हैं स्थिर रहेंगे। शुद्ध निर्यात को प्रभावित करने वाले देखो कौन कौन से कारक हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है विदेशी जीडीपी, विदेशी आय कि वहां पर आय का स्तर कैसा है, जीडीपी कैसी है। दूसरा होता है सापेक्षिक अंतरराष्ट्रीय कीमतें, और तीसरा है यानी कि रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइसेस एंड विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इनसे हमारा जो है ये शुद्ध निर्यात फलन प्रभावित होता है, इससे परिवर्तन आएगा। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट पॉइंट, विदेशी जीडीपी में परिवर्तन, चेंज इन फॉरेन जीडीपी। यदि विदेशी जीडीपी में वृद्धि होती है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक मिनट, सॉरी, देखो विदेशी जीडीपी में परिवर्तन, चेंज इन फॉरेन जीडीपी। यदि विदेशी जीडीपी में वृद्धि होती है तो अन्य बातें समान रहने पर विदेशी क्रेताओं द्वारा घरेलू उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। यानी कि इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट इन फॉरेन जीडीपी तो उनकी इनकम बढ़ रही है, तो उनकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे देश में बनी हुई है उसकी डिमांड वो लोग ज्यादा करते हैं। उसका कारण यह है कि विदेशी जीडीपी बढ़ने पर विदेशी निवासियों की
प्रयोज्य आय बढ़ती है, इसलिए वे हमारी वस्तुओं की अधिक मात्रा में मांग करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू निर्यात बढ़ते हैं। जब वो हमारी चीजों की ज्यादा मांग करेंगे तो हम उनको ज्यादा चीजें बेचेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा निर्यात बढ़ जाता है। इसीलिए शुद्ध निर्यात फलन में एक समान मात्रा दर से वृद्धि होती है। इसके कारण शुद्ध निर्यात फलन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन आरंभिक स्थिति की तुलना में समांतर रूप से ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो हमारा देखो, जब विदेशी जीडीपी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, विदेशियों की आय बढ़ती है, तो वो हमारी जो घरेलू निर्मित वस्तु है, हमारे देश की जो वस्तु है, उनकी मांग ज्यादा करते हैं, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, हम शुद्ध निर्यात बढ़ेगा तो शुद्ध निर्यात फलन ऊपर की ओर खिसक जाता है, जैसे डायग्राम में है। ये पहले शुद्ध निर्यात फलन NX है, फिर जैसे विदेशी जीडीपी बढ़ी, विदेशियों की आय बढ़ी, उन्होंने हमारी वस्तुओं की मांग ज्यादा करी, तो विदेशी नेट एक्सपोर्ट फंक्शन जो है ऊपर की ओर खिसक कर NX डैश हो जाता है। ठीक है, रेखा चित्र में प्रारंभ में शुद्ध निर्यात फलन NX है। जब विदेशी जीडीपी बढ़ जाता है तो घरेलू वस्तु और सेवाओं का निर्यात भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप शुद्ध निर्यात फलन वक्र दाईं ओर खिसककर NX0 से खिसककर NX1 हो जाता है। ऐसे लिखना था, तो खिसककर NX1 हो जाता है, या NX0 से खिसककर NX1 हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है सापेक्षिक अंतरराष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन। घरेलू उत्पादित वस्तुओं की कीमतों की तुलना में यदि विदेशी निर्मित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है, अधिक परिवर्तन होता है, तो निर्यात और आयात दोनों में ही परिवर्तन आ जाएगा। यदि घरेलू कीमतों में, यानी कि अगर घरेलू उत्पादित वस्तु की कीमतों की तुलना में विदेशी कीमतों में परिवर्तन हो रहा है ज्यादा, तो उससे हमारा निर्यात और आयात दोनों बदल जाएंगे। यदि घरेलू कीमतों में विदेशी कीमतों की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होती है, यानी विदेशों में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो विदेशी कीमतों की तुलना में अधिक तेजी से, यानी कि हमारे देश के अंदर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, तो घरेलू निर्मित वस्तुएं विदेशी बाजार में महंगी हो जाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप शुद्ध निर्यात फलन का इसमें चलन होगा, यानी मूवमेंट होगा, उसका स्लोप बदल जाएगा और ये नीचे की ओर इसका चलन हो जाएगा। तो जैसे हमारा ढाल जो है इसकी ये थी NX की, तो ये नीचे की ओर चलन हो गया तो NX डैश आ जाएगा। तो जब विदेशी की तुलना में हमारे देश के अंदर वस्तुओं की कीमतें अधिक बढ़ रही हैं। रेखा चित्र में X माइनस M0 प्रारंभिक शुद्ध निर्यात फलन है। विदेशी कीमतों की तुलना में घरेलू कीमतों में अपेक्षित अधिक वृद्धि के कारण शुद्ध निर्यात फलन नीचे की ओर चलन X माइनस M1 हो जाता है और इसका ढाल भी बदल जाता है। यानी कि अगर हमारे देश की कीमतों में परिवर्तन अधिक हो रहा है एज कंपेयर टू विदेशी कीमतों के कंपैरिजन, तो क्या होगा, शुद्ध निर्यात फलन का ढाल बदल जाएगा और ये नीचे की ओर इसका चलन हो जाएगा। जैसे डायग्राम में NX से NX डैश हो जाएगा। तो ये पहले ये था हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ इट बिकम दिस कि जब विदेशी की तुलना में हमारे देश के अंदर कीमतों में परिवर्तन अधिक हो रहा है। और तीसरा पॉइंट है इसका विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर क्या होता है? देखो, विदेशी विनिमय दर वो दर होता है जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन, विनिमय होता है। जैसे आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि $1 की कीमत सपोज मान लेते हैं कि 75 रुपए है, तो ये क्या है, विदेशी विनिमय दर है बिटवीन द करेंसी ऑफ इंडिया एंड US। ठीक है, कि $1 75 रुपीज का है। अगर आपको $1 खरीदने हैं तो 75 रुपीज देने होंगे, और अगर अमेरिका वाले रुपए खरीदते हैं तो वो $1 देंगे तो उनको 75 रुपीज मिलेंगे। तो विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, घरेलू मुद्रा में विदेशी मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर वो दर होती है जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन के कारण भी शुद्ध निर्यात फलन ऊपर या नीचे की ओर खिसक जाता है। अतः विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य बढ़ जाता है। इसके कारण भारत का निर्यात कम हो जाएगा, यानी कि डॉलर की कीमत रुपए में कम हो जाती है। अगर हम कहें जैसे $1 की कीमत, जैसे विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य बढ़ जाता है, यानी अगर हम कहें कि $1 की कीमत 75 से गिरकर 70 रुपए हो जाती है, तो हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर में बढ़ जाती है, तो उससे हमारा निर्यात कम हो जाएगा
परिणाम स्वरूप शुद्ध निर्यात फलन नीचे की ओर खिसक जाएगा। तो ये ऐसे नीचे की ओर खिसक जाएगा। शुद्ध निर्यात y अक्ष पे मापा गया है, वास्तविक राष्ट्रीय आय जीडीपी x अक्ष पर। तो रेखा चित्र में x माइनस m0 आरंभिक शुद्ध निर्यात फलन है। जब विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य बढ़ जाता है तो शुद्ध निर्यात फलन नीचे की ओर खिसक जाता है, तो वो x माइनस m1 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था कि जब विदेशी यानी कि शुद्ध निर्यात फलन में परिवर्तन कब होता है। तो एक बार इसको हम इसमें भी डिस्कस करते हैं इंग्लिश में। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। शिफ्ट इन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। तो द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन एक्सप्लेन relationship between net export and GDP. It is based on the assumption that all other factors that affect net export except domestic GDP remain constant. कि GDP के अलावा डोमेस्टिक बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। द मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द नेट एक्सपोर्ट, तो अब इनमें चेंजेस होंगे। तो हाउ नेट एक्सपोर्ट चेंजेस फंक्शन, तो फॉरेन जीडीपी, रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस, एक्सचेंज रेट। तो फर्स्ट करते हैं चेंज इन फॉरेन जीडीपी एंड इंक्रीज इन द फॉरेन जीडीपी। अगर फॉरेन जीडीपी बढ़ेगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल will lead to an increase in demand for domestic produced goods and goods by foreign buyer, an increase in the foreign GDP। कि अगर foreign GDP बढ़ता है, other thing being equal will lead to an increase in demand for domestic produced goods। कि जो डोमेस्टिक अगर फॉरेन जीडीपी बढ़ता है यानी कि फॉरेन की जो इनकम बढ़ती है, तो क्या होगा, इससे जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। It is because of fact that an increase in the foreign GDP increases the income of foreign resident and therefore they make large demand for our goods. It is because of the fact that an increase in the foreign GDP increases the income of foreign resident कि जो इनकम है फॉरेन रेसिडेंट की वो बढ़ जाएगी and therefore they make large demand for our goods। तो वो हमारे गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। Consequently domestic export increases because same amount more is exported at each level of GDP, more amount of is exported, sorry same GDP आएगा कि हमारा GDP सेम है, उस पर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। The increase in constant of domestic net export function, this cause net export function shift upward parallel to original position। तो इससे हमारा जो है जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, इन द फिगर व्हेन द जीडीपी, तो ये हमारा व्हेन द जीडीपी इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट नेट एक्सपोर्ट फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री शिफ्ट्स अपवर्ड। कि जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है डोमेस्टिक कंट्री का वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। As a result, the net export function of domestic country shift upward because of the increase in net export। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन जो है ये ऐसे ऊपर की ओर खिसक जाता है। ठीक है, ये बेसिकली था जब फॉरेन जीडीपी बढ़ गया तो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड। सेकंड पॉइंट, चेंज इन रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइसेस। एनी चेंज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स रिलेटिव टू दोज ऑफ फॉरेन गुड्स विल कॉज बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चेंजेस। कि any change in the price of domestic produced goods relative to those of foreign goods, कि हमारे देश के अंदर जो प्राइस हो रहा है वो फॉरेन से ज़्यादा चेंज हो रहा है, will cause both export and import change. In case the domestic price increases faster than the rises in foreign country, कि हमारे देश के अंदर जो प्राइस है वो तेजी से बढ़ रहा है as compared to foreign countries price, the domestic produced goods become costlier in the foreign market। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स फॉरेन मार्केट में महंगी हो जाएंगी। The demand for these goods will fall and as a result the export will decline। Consequently the net export function moves downward and changes its slope। कि इसमें नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का जो है स्लोप चेंज होगी और वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा मूवमेंट होगा। तो ये हमारा नेट एक्सपोर्ट है y, ये लेवल ऑफ इनकम y0 है। तो हमारे जो कंट्री में प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो गए एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन डाउनवर्ड मूव्स कर जाएगा। तो यू कैन राइट फ्रॉम nx0 to nx1। एट x एक्सिस वी मेजर रियल इनकम और जीडीपी,
और नेशनल इनकम एंड y एक्सिस नेट एक्सपोर्ट। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट change in exchange rate. Exchange rate refer to the value of currency in relation to foreign currency. कि value of domestic currency in relation to foreign currency, कि हमारी करेंसी की वैल्यू मतलब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी में कैसे एक्सचेंज होती है। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था पीछे कि सपोज द प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज 75, यानी फॉर $1 वी गेट 75, फॉरनर गेट 75 रुपीज, for purchase $1 we need to 75 rupees. Changes in exchange rate also cause upward and downward shift of net export function. If value of Indian rupee depreciates in relation to foreign currency, कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो इंडियन गुड्स बिकम चीपर। वो जो पीछे पढ़ा था हिंदी में उसमें हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ पे दिया उसने कम हो गई है। Then Indian goods become cheaper in foreign market. The demand for foreign Indian goods tends to rise. तो जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो domestically goods become cheaper in international market. As a result, their export increases. The export increases, it will cause an upward shift of export function. तो हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इनवर्सली, इफ द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी एप्रिसिएट बढ़ जाए in relation to foreign currency, it will cause downward shift of net export function. तो net export function नीचे की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो this is the net export function and which is very important, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। And now we discuss national income determination in 4-sector economy or an open economy. 4-sector economy includes households, firms, government, foreign trade. This economy also known as an open economy. और इस इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। The 4-sector economy includes household, firm, government, foreign trade. This economy is also known as an open economy. अब tabular presentation है। The equilibrium condition of the national income in an economy is that aggregate output or GDP should be इक्वल टू डिजायर्ड एग्रीगेट स्पेंडिंग, कि एग्रीगेट आउटपुट इक्वल होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड के, और वी कैन से एग्रीगेट स्पेंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ दिस इज द टेबल। नेशनल इनकम, डिजायर्ड कंजम्पशन स्पेंडिंग 100 + 0.8 YD, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिजायर्ड नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो इसमें एक्सपोर्ट हमने कांस्टेंट रखा है 50 करोड़ एंड इंपोर्ट आर द 0.25y। डिजायर्ड एग्रीगेट स्पेंडिंग C + I + G + NX, तो ये हमारी इनकम है 0, 1000, 2000, 3000, 4000 एंड सो ऑन, एंड डिजायर्ड स्पेंडिंग 100, 820, 620 एंड सो ऑन। ठीक है, डिजायर्ड स्पेंड इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ एंड डिजायर्ड स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग कांस्टेंट 100 करोड़। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कांस्टेंट है 50, इंपोर्ट 0.25y, तो 500, 250, 0, 250 माइनस 250, 400, 500 एंड सो ऑन। डिजायर्ड स्पेंडिंग C + I + G NX, C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग और NX नेट एक्सपोर्ट, तो इनको ऐड करेंगे तो वी गेट डिजायर्ड स्पेंडिंग। ठीक है, तो दिस इज, ये बढ़ता जा रहा है हमारा। तो एज इनकम इंक्रीजेज डिजायर्ड स्पेंडिंग आल्सो इंक्रीजेज। गलत हो गया, ये 2900 करोड़ आएगा एंड दिस इज 3600 करोड़, ये रॉन्ग है। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड 3600 करोड़। इसको स्टूडेंट्स व्हेन यू राइट यू विल राइट एट 3600 and this is also 3600 crores the GDP level or the aggregate supply, it is also known as aggregate supply. So the equilibrium level of income and employment is 3600 crore. Here you write 3600 crore. ठीक है, तो this is the equilibrium level where aggregate demand is equal to aggregate spending or GDP.
एग्रीगेट सप्लाई और जीडीपी। इन द टेबल ये भी ठीक करना पड़ेगा हमें, 3600 आएगा। The equilibrium level of national income in four sector economy is attained at 3,600 crore, where aggregate output GDP equal to desired spending, and this is the tabular diagrammatical same diagram सब में 2 sector, 3 sector, 4 sector by AD and AS या AE and AS, ठीक है। तो this is 45 degree line aggregate supply, this is AE aggregate expenditure, C plus I plus G plus NX. E is the equilibrium point. Here we write E. At y-axis we measured real income or GDP. At y-axis desired spending C plus I plus G plus N. 2 सेक्टर में लिखना है तो C plus I plus G, और यहाँ पर भी आप कर दोगे C plus I plus G, सॉरी 3 सेक्टर में, और 2 सेक्टर ओनली C plus I. तो E is the equilibrium point. At that point aggregate supply is equal to aggregate expenditure, and OM is the equilibrium level of income. In the figure, the equilibrium level of national income is attained at point E, where 45 degree line intersects desired spending, aggregate spending line AE. At point E, the equilibrium level of income or GDP is OM. So the equilibrium level of income or GDP is OM, because at this level of income or GDP, aggregate supply is equal to aggregate expenditure or aggregate demand. Now we have the practical problem numerically. Find out the equilibrium level of GDP. Investment 1000 crore, government expenditure 100, taxes 100, export 500, import 0.25y, and C is equal to 100 plus 0.8 YD. YD disposable income. So student, you can write it. I investment 1000 crore, and there must be a numerical must be asked in the paper, either from 2 sector, 3 sector, or 3 sector or 4 sector. I investment 1000, G government 100, taxes 100, export 500, import 0.25y, and C is equal to 100 plus 0.8 YD. So at equilibrium, AE, C plus I plus G plus NX. At equilibrium, aggregate supply is equal to aggregate expenditure. So aggregate supply same thing, income Y, C plus I plus G plus NX. Y equal to, in the place of C, 100 plus 0.8 YD था, तो Y minus taxes 1000 minus 0.25. अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 100 1000 ऐड किया 1700 प्लस 0.8y इंटू 100 से किया तो माइनस 80 माइनस 0.255, ठीक है। तो इट बिकम 0.55y, 1620 प्लस 0.55y, इट गो देयर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1620y 0.45y इज इक्वल टू 1620, y इज इक्वल टू 1620 अपॉन 0.45. तो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 3600 करोड़। ये न्यूमेरिकल है। अनदर यू विल सॉल्व इट। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन जीडीपी। C is equal to 100 plus 0.6 YD, T taxes 200, ठीक है। E export या X भी लिख सकते हैं 200, and I investment 500, government expenditure 800, and import 50 plus 0.3y, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जैसे ये इक्विलिब्रियम, aggregate supply is equal to aggregate expenditure, aggregate supply same thing, income C plus I plus G plus NX, ठीक है। तो y is equal to 100 plus 0.6 YD, 500 plus 80 plus 200 ब्रैकेट में माइनस 50, एक्सपोर्ट 200 और इंपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो 50 और माइनस 50 होगा माइनस 0.35 and solve it. So we get the equilibrium level of income or employment in 4 sector economy is 2043 crores. So this is the equilibrium level of income in 4 sector economy. If the students have any problem,
they can ask by making unmute them. If the students have any query, they can ask. So I can repeat again. They have any problem, so they can ask their query by making unmute them. Chalo. Students, if you have any problem, you have any query, नहीं तो हिंदी में डिस्कस करते हैं। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का साम्य स्तर। 4 क्षेत्र देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण या आय का साम्य स्तर का निर्धारण, इसको थोड़ा और हम नो ठीक। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण या 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में साम्य स्तर का निर्धारण, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार, फर्में, सरकार तथा विदेशी व्यापार को शामिल किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मुक्त या अनाकृत या ओपन अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहते हैं। देखो हमने पहले पढ़ा था 2 क्षेत्र और 3 क्षेत्र, तो वो होता है बंद अर्थव्यवस्था। अगर पेपर में आ जाए कि बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण, साम्य स्तर का निर्धारण बताएं या राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस प्रकार होता है, तो स्टूडेंट मस्ट राइट 2 क्षेत्र और 3 क्षेत्र दोनों का आपको आय का साम्य निर्धारण आपको पूरा समझाना पड़ेगा। और अगर 2 क्षेत्र 3 क्षेत्र में आता है तो उसके अकॉर्डिंग, और 4 क्षेत्र में है तो आपको हमें 4 क्षेत्र का भी कर रहे हैं तो ये 4 क्षेत्र भी करना होगा ऐसे। तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार, फर्में, सरकार तथा विदेशी व्यापार को शामिल किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मुक्त फ्री इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहते हैं। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर की अनिवार्य शर्त यह है कि कुल उत्पादन या जीडीपी इच्छित सामूहिक व्यय के समान होना चाहिए। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में इच्छित सामूहिक व्यय परिवारों के उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात का जोड़ होता है। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो सामूहिक व्यय है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या यू कैन से एग्रीगेट डिमांड, ये किन किन का सामूहिक व्यय, परिवार के उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात का जोड़ होता है। राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर को एक सारणी की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। ये है हमारा जीडीपी, ठीक है, 0, 1000, 2000, 3000, 3600, 4000, 5000। इच्छित उपभोग व्यय ये 100, 880, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 YD है। YD या Y माइनस टैक्सेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। 100, 880, 16, 20, 2420, 2900, 3220 एंड सो, ठीक है। इच्छित व्यय हमारा 1000, सरकार जो निवेश है सरकार का व्यय कांस्टेंट है 1000, ठीक है। और ये हमारा इच्छित शुद्ध निर्यात 500 माइनस 0.255 है। इच्छित सामूहिक व्यय C प्लस I प्लस G प्लस NX, यानी इसके अंदर उपभोग व्यय और निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, तीन चारों का समावेश हो जाएगा। तो ये हमारा 1700, 2230 एंड सो ऑन। तो सारणी में जो आय 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का आय का साम्य, ये ठीक है, इसमें वो 3600 करोड़ रुपए पर है, क्योंकि इस स्तर पर
समग्र पूर्ति समग्र आय के समग्र पूर्ति समग्र व्यय कुल व्यय या समग्र मांग के बराबर है। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का साम्य स्तर 3600 करोड़ रुपए है पर निर्धारित रहता है, जहां पर कुल उत्पादन जीडीपी इच्छित सामूहिक व्यय के समान है। अब ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, दिस इज द डायग्राम। एक्स अक्ष पर हमने वास्तविक राष्ट्रीय आय या जीडीपी को मापा है, वाई अक्ष पर इच्छित सामूहिक व्यय सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स है, ठीक है। गलत हो गया, ये ए एस है स्टूडेंट्स, इसको ए एस कर देना, ये ए डी लिखा गया है, ए एस या वाई, ठीक है। और ये हमारा ए है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और बिंदु ई संतुलन बिंदु है, साम्य बिंदु है, जहां पर समग्र पूर्ति और समग्र मांग या समग्र व्यय ए बराबर है, और ओएम आय का साम्य स्तर है, क्योंकि इस स्तर पर समग्र मांग या कुल व्यय एएम ईएम समग्र पूर्ति ओएम के बराबर है। रेखा चित्र में राष्ट्रीय आय का साम्य बिंदु ई है, जहां 45 डिग्री रेखा इच्छित सामूहिक व्यय रेखा ए को काटती है, ए 0 को। साम्य बिंदु पर राष्ट्रीय आय का साम्य स्तर ओएम है, जहां समग्र पूर्ति ओएम समग्र मांग समग्र पूर्ति ईएम समग्र मांग ओएम के बराबर है। ये गलत लिखा गया है, जहां समग्र पूर्ति ओएम समग्र मांग ईएम के बराबर है। तो ओएम आय का साम्य स्तर है, जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति, समग्र मांग को हम समग्र व्यय या कुल व्यय भी कहते हैं, उसके बराबर है। तो ये न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया था, सेम वही है। आई, तो आय का साम्य स्तर ज्ञात करना है इसमें, और वन न्यूमेरिकल मस्ट बी आस्क्ड, आई इज इक्वल टू 1000, जी 100, एक्सपोर्ट 500, सी 100 प्लस 0.8, वाई डी है तो वाई माइनस टैक्सेस हो जाएगा, टी टैक्सेस 100 और एक्सपोर्ट 500, इंपोर्ट 0.25, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आय के साम्य स्तर पर समग्र पूर्ति एएस समग्र व्यय ए या एडी के बराबर होता है, एएस वाई और ए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ठीक है। तो वाई हमारा है आई एएस वाई, सी की जगह 100 प्लस 0.8 वाई माइनस टैक्सेस है, ठीक है। ये ओपन हो गया और इसमें टैक्सेस हमने कर दिए, तो ये हमारा आ गया, आंसर आ जाएगा 3600 करोड़ रुपए। तो आय का साम्य स्तर 3600 करोड़ रुपए, तो ये हमारा है। I can repeat the net export again so that the student can understand it very easily. Okay. शुद्ध निर्यात फलन, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। शुद्ध निर्यात बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। एवरी टॉपिक विच वी डिस्कस्ड इन द क्लास आर मोस्ट very important topics for the exam point of view. So student can take class properly and study after taking the class so that they can understand very easily the topic. शुद्ध निर्यात फलन, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन एवं राष्ट्रीय आय का निर्धारण। तो एक देश कितनी मात्रा में निर्यात करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशी परिवारों द्वारा फर्मों के व्यय संबंधी निर्णय क्या है। कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ द फॉरेन रेसिडेंट के बिकॉज हाउ मच दे मेक इम्पोर्ट, क्योंकि अगर हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज द जो फॉरेन कंज्यूमर है, they demand for domestically produced goods and services in, ठीक है। तो जो निर्यात बाहरी कारकों या भारी व्यय से प्रभावित होता है, तो एक्सपोर्ट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन एक देश के आयात घरेलू विदेशी निवासियों के व्यय संबंधी निर्णयों से प्रभावित होते हैं। एंड इंपोर्ट आर डिपेंड ऑन द डोमेस्टिक रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। घरेलू निवासी अक्सर विदेशों में निर्मित वस्तु और सेवाओं की मांग करते हैं।
जो डोमेस्टिक रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है, जो कंज्यूमर है, दे डिमांड फॉरेन मेड गुड. एज द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इंक्रीजेस, द इंपोर्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. और निर्यात जो है एक अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन का वो करता है. इन एक्सपोर्ट आर वर्क एज एन इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, बिकॉज एज एक्सपोर्ट इंक्रीजेस द जीडीपी ऑल्सो. वेयर एज द जो हमारा इंपोर्ट है, दे आर लीकेजेस इन द इकोनॉमी, कि एज जीडीपी इंपोर्ट इंक्रीजेस, जीडीपी फॉल्स. तो इसलिए देखो स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ताकि जो हमारा इकोनॉमी है वो ग्रो करे. लेकिन हमारी कंट्री में मोस्टली क्या है कि वी हैव द इंपोर्ट मोर, एक्सपोर्ट लेस, सो आवर इकोनॉमी नॉट ग्रो एज मच एज वी नीड. निर्यात एवं आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं. इच्छित निर्यात का राष्ट्रीय आय से विपरीत संबंध होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय और इच्छित आयातों में धनात्मक संबंध होता है. शुद्ध निर्यात एवं राष्ट्रीय आय के बीच ऋणात्मक संबंध को शुद्ध निर्यात फलन कहते हैं. कि नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट is negatively related with level of GDP, because there is a direct relationship between the GDP and import. शुद्ध निर्यातों एवं राष्ट्रीय के बीच ऋणात्मक संबंध को शुद्ध निर्यात फलन कहते हैं. There is an inverse relationship between the net export and GDP, और national income is known as net export function. तो ये हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है. ये डायग्राम है इसका हमारा, थोड़ा इसको. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेट एक्सपोर्ट फंक्शन. एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड इंपोर्ट अपवर्ड स्लोपिंग, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एंड 200 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी. और इन डायग्राम सेकंड ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा 50, और डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल एट 200 करोड़, नेट एक्सपोर्ट इज 0. ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट जो है हमारा वो नेगेटिवली. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द नेट एक्सपोर्ट. तो ये हमारा नेट एक्सपोर्ट है, और नेट एक्सपोर्ट जो है नेगेटिवली रिलेटेड होता है विद लेवल ऑफ जीडीपी. तो दिस इज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन. So these are there are some factors which affect the net export. Due to that, net export may be increase or decrease. ठीक है, मेनली तो नेट एक्सपोर्ट डिपेंड करता है हमारा डोमेस्टिक जीडीपी, एंड और while हम taking the net export function, other factor constant except domestic GDP. Now we have some factor which affect the net export function or explain it. जैसे विदेशी GDP है, foreign GDP, and relative international prices, and domestic price relative to international prices, and foreign exchange rate. ठीक है, तो as foreign GDP changes, net export also changes. Because as there is an increase in foreign GDP, the income of the foreigners increases, they demand more domestically produced goods, so our export increases, so net export also increases, and net export shift to rightward, जैसे ये हमारा डायग्राम है, और we can say upward. ठीक है, देन सापेक्षिक अंतरराष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन डोमेस्टिक प्राइस एज इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइसेस. If there is a change, the domestically price increases at fast rate as compared to foreign market price in foreign market, so our net export, both export and import changes, and net export moves downward, and the slope of net export function also changes curve. ठीक है, and it moves downward like this. And next one is foreign exchange rate. Change in foreign exchange rate also affect net export function. What is foreign exchange rate? Foreign exchange rate is the rate at which the currency of one country can be exchanged in another country.
कि जो घरेलू मुद्रा विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, घरेलू मुद्रा में विदेशी मुद्रा के मूल्य में या क्रय शक्ति को विदेशी विनिमय दर कहते हैं, इसमें परिवर्तन के कारण भी शुद्ध निर्यात फलन ऊपर या नीचे की ओर खिसक जाता है। जैसे विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य बढ़ जाता है, तो इसके कारण भारत का निर्यात कम हो जाता है, बिकॉज जो फॉरेन मेड गुड्स है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, वो डिक्लाइन हो जाएगा, बिकॉज फॉरेन मेड गुड्स बिकम कॉस्टलियर, as a result net export, our export decreases, net export function moves, or sorry shifts हो जाएगा यहाँ पर downward, like this is net export, तो net export function downward। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा 4 सेक्टर में इक्विलिब्रियम लेवल है। तो दिस इज नाउ वी हैव कंप्लीटेड द 4 सेक्टर इकोनॉमी आल्सो। तो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीटेड, and in the next class we discuss about national income, which is also very important topic। ठीक है, and students you must study, make notes your own with the help of the study material provided by the SOL, and I also make notes from this, and it is very very good study material to the students. You must study about this, and this is very important topic for the examination point of view for all of the students, and you must study properly so that you will get a very good marks in the examination। and if you have any query, आजकल तो ये भी बंद कर दिया है हमारा। Now we have completed our session, and so we have completed our session, and the 4 sector economy also completed। In the next class we studied about the national income topic, numerically theoretical part we all discussed about that। Okay students, keep studying and stay safe, and live at home so that you and your family also safe। Okay students, bye bye।